Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 10 जनवरी के हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, पहले रिवीजन करेंगे। एज पर आर रूल हम डेली पहले रिवीजन करते हैं पुराने करंट अफेयर्स के, कि चीज़ें आपके रिवाइज होते रहें। जो पुराने करंट अफेयर्स हैं 2-4 दिन पहले के हैं या कल के करंट अफेयर्स थे, वो आपके रिवीजन में आते रहें। जब हम रिवीजन करें ना, तो अपने नोट्स जहाँ पे आप बना रहे हो ना, वो नोट्स खोल के बैठा करो। साथ साथ नोट्स भी देखते रहो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ते रहो। कहीं पे कोई चीज़ आपने छूट गई हो तो वो नोट कर लो, नहीं तो अपना साथ साथ रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं सारे करंट अफेयर्स आपसे को रिवाइज करा दूंगा। मान लो पिछले एक वीक की अगर मैं बात करूँ तो 15-20 करंट अफेयर रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत चीज़ होती हैं करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है, ये बहुत वास्ट होता है। जितना पढ़ोगे उतना कम है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की। ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का 7th एडिशन था, जो कि अभी दिया गया है। किनके द्वारा प्रेजेंट किया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन? द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा ये डिजिटल इंडिया अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया। और डिजिटल इंडिया जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सब कुछ डिजिटाइज होना है। चाहे कोई नया स्टार्टअप आ रहा हो, चाहे कोई पुराना कंपनी हो, अगर डिजिटाइज नहीं होंगे आज के टाइम पे, डिजिटल ऑनलाइन नहीं जाएंगे वो, तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का 7th एडिशन था। किसके द्वारा वो ये प्रेजेंट किए गए अवार्ड्स? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की। अब ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या? हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तो सुना था कि मतलब आप गोल्ड को बाय कर लो, ये गवर्नमेंट इशू करती है, 2.5% इंटरेस्ट आपको हर साल का मिलता रहेगा, और ऊपर से 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और 8 साल तक आप इसको रख के 8 साल बाद आप इसको बेच सकते हैं मैक्सिमम। तो जो 8 साल बाद गोल्ड की वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा, और ये इंटरेस्ट तो मिलता रहता है हर साल। अब आ गया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। देखो, सॉवरेन का मतलब पहले तो समझ लो कि फिक्स्ड रिटर्न्स। ठीक है, फिर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या करेगा? आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। जो भी पैसा आप या फिर जो भी इस बॉन्ड को खरीदेगा और जितना अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर, वो अमाउंट आपका कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? फिर
एनवायरनमेंट को की तरफ यूज़ किया जाएगा। एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने में मदद किया जाएगा। और यहाँ पे जो ये गोल्ड सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च करने की बात की गई ना, 18,000 करोड़ रुपए के लॉन्च करने की बात की गई इन 2 ट्रांचेस। एक रहेगा आपका, सॉरी, ये 16,000 करोड़ रुपए के हैं, ठीक है। 16,000 करोड़ रुपए के आपके ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च करने की बात की गई 2 ट्रांचेस में ऑफ 8,000 करोड़ रुपीस ईच। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं G20 की। ग्रुप ऑफ 20 की चेयरमैनशिप किसके पास? इंडिया के पास। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक। ठीक, यहीं पे थीम क्या लॉन्च की गई है? वासुदेव कुटुंबकम। ठीक, इसी के साथ याद रखेंगे G20 तो हो गया ग्रुप ऑफ 20, इसी का एक काम होता है Y20 यंग 20। ये क्या होता है कि जो यंग है उनको एंकरेज करने के लिए, उनको बढ़ा चढ़ा के पार्टिसिपेशन कराने के लिए उनका, इसीलिए ये यंग 20 लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका कर्टेन रेजर इवेंट लॉन्च किया गया किसके द्वारा? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। आप इनको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? पहले तो एक ये टर्म समझ जो, ये एक आपका पेडागॉगी में टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना बच्चे, उनको पता होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जब आपके जो विकलांग होते हैं, बेसिकली जो आपके रेगुलर बच्चे एंड जो आपके डिसेबल्ड बच्चे, जब ये दोनों साथ मिलके किसी स्कूल में पढ़ेंगे तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कह देंगे। और आगे आगे इंक्लूसिव एजुकेशन को ही बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है। वरना डिसेबल बच्चों की जो रेगुलर बच्चे हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो इंक्लूसिव एजुकेशन जो स्कूल उसका इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड है तो क्या होगा, जो फैसिलिटीज़ डिसेबल बच्चे को चाहिए ना वो वहाँ पे स्कूल में प्रोवाइड की जाएंगी, और जो सारी फैसिलिटीज़ एक रेगुलर बच्चे को मिल रही हैं वो सारी फैसिलिटीज़ एक डिसेबल बच्चे को मिलेंगी। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है जो कि बहुत अच्छा रहेगा। इसी के बेस पे याद रखेंगे, इंडिया का पहला फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन अभी सेलिब्रेट किया गया जो कि है पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन गोवा। कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। नाम क्या है? पर्पल फेस्ट। थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रणेश। प्रणेश 16 साल के हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, 79th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। रिल्टन कप को जीत के ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे फाइड के डेप्टी प्रेसिडेंट कौन है? वो रहेंगे विश्वनाथ आनंद। 1988 में ये पहले ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के, और ये डेप्टी प्रेसिडेंट है फाइड के। नेक्स्ट सीरियम। सीरियम वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा अभी एक टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ 2022 की लिस्ट रिलीज की गई, और इस एयरपोर्ट में केम गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर कर्नाटका का है, इसकी पोजीशन आई 2nd। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, इसकी पोजीशन आती है 7th इन दिस टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑफ 2022, जो कि रिलीज किया गया किसके द्वारा? सीरियम के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने अभी कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता। कहाँ पे जीता? IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? वेट लिफ्टिंग से ये बिलोंग करती हैं। और ये जो आपका IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? कोलंबिया में हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलायंस जियो ने अभी एक्वायर करने की बात की रिलायंस इंफ्राटेल। 100% स्टेक से ये इनको बाय करेंगे, इसका मतलब 100% इक्विटी स्टेक बाय करेंगे इसमें फॉर 3,725 करोड़ रुपीस की लागत से। ठीक है, 100% बाय कर लेंगे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्ज़ा की। सानिया मिर्ज़ा हम जानते हैं वैसे तो एक टेनिस प्लेयर है जिन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है, लेकिन हम ये उन सानिया मिर्ज़ा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये जो पिक्चर में है। ये सानिया मिर्ज़ा ने अभी NDA का एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, और ये पहली मुस्लिम फीमेल फाइटर जेट पायलट बनने वाली हैं।
ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फाइटर जेट पायलट कौन है? सानिया मिर्जा। कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा स्टेट की बात करें तो मूव बस सर्विस यहाँ पे है। फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पर है। फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी सेंटर यहाँ पर है। उड़ीसा में ही अगर आपको याद हो तो एक फैसिलिटी लॉन्च की गई थी जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी। ये ड्रिंक फॉर टैप फैसिलिटी बेसिकली क्या है कि डायरेक्टली आप टैप से पानी पी सकते हैं और ये फैसिलिटी 19 सिटीज़ में प्रोवाइड कराई गई है। इवन जो बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ पर रहेगा? राउरकेला में रहेगा, उड़ीसा राउरकेला में। और जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप रहेगा वो कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। कहाँ पर? भुवनेश्वर एंड राउरकेला में। अभी 2023 में ही होना है ये, ठीक है। और बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम भी कहाँ पर है? वो राउरकेला। इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम वो भी उड़ीसा में ही रहेगा। तो ये तो हो गए आपके रिवीजन पार्ट फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहता है उसकी तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। अभी मणिपुर विजिट किया इन्होंने और यहाँ पे 21 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इन्होंने इनॉग्रेट किया और फाउंडेशन स्टोन को ले किया। ये जो 21 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रहेंगे 1311 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बनाए जाएंगे। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा फ्लैग यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा ट्राई कलर फ्लैग जो कि 160 फीट का रहेगा। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, इन्होंने यहीं पर इम्फॉल में 122 फीट का एक पोलो प्लेयर का स्टैचू भी इनॉग्रेट किया जो कि 39 करोड़ रुपीस की लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे नेशनल हेल्थ अकाउंट डैशबोर्ड था ना हमारा, एक मतलब क्या है, अकाउंट बना दिया जाएगा और वहाँ पर आपके जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है ना वो सारे मेंटेन किए जाएंगे ऑनलाइन। आपको कब क्या हमने टेस्ट कराया, टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा, उस टेस्ट के बेसिस पे डॉक्टर ने क्या मेडिसिन सब्सक्राइब करी आपको, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसी के बेसिस पे ये तो हो गया था हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए किसी भी व्यक्ति का। लेकिन अगर हॉस्पिटल्स पे हमें चेक रखना है, हॉस्पिटल्स को हमें ग्रेड करना है, हॉस्पिटल्स को इवेल्युएट करना है, तो उसके लिए भी रिसेंटली अभी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है टू इवेल्युएट एंड ग्रेड हॉस्पिटल्स, कि जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कितनी बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड की जा रही है या फिर सिर्फ शोबाजी की जा रही है वहाँ पर, क्या वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं क्या वो आपके ट्रेंड डॉक्टर्स हैं भी या फिर वो सिर्फ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नाम के डॉक्टर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा और इवेल्युएट किया जाएगा हॉस्पिटल्स को अंडर दिस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के अंडर। फिर आप देख सकते हैं जो 5 बेसिक इंडिकेटर्स रहेंगे, जिस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, बेनिफिशियरी सेटिस्फैक्शन, हॉस्पिटल रीएडमिशन रेट, द एक्सटेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, confirmed grievances and improvement in patients health related quality of life, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात की जाएगी। अगर मैं बात करूँ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तो 2 जनवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसी के साथ साथ याद रखेंगे डॉक्टर राम सेवक शर्मा, ये क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, केरला की बात करते हैं। केरला के बारे में काफ़ी करंट अफेयर्स हैं फ्रेंड्स। जैसे पहला स्टेट बना जिन्होंने अपना खुद का OTT लॉन्च किया था सी स्पेस के नाम से, इन्होंने ही अपना खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी लॉन्च किया। इन्हीं की ऐप है शैली ऐप जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन है। फिर केरला की बात करें तो केरला वो पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला स्टेट बन गया है इंडिया में, पहला स्टेट जो कि फुल्ली डिजिटल बैंकिंग सर्विस आपकी जो ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कोई भी आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है बैंक से रिलेटेड जो भी सर्विस है आप अपने फ़ोन से उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। इसी के लिए याद रखेंगे यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी कौन है, वो है पिनरई विजयन, ठीक। तो दिस अचीवमेंट वॉज ड्रिवन बाय सोशल इंटरवेंशंस थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन द बैंकिंग सेक्टर। Kerala fiber optic network K-Phone project of the state government, which is almost 90% completed, will reduce the digital divide here. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैलचर फर्टिलाइजर प्लांट, ये ओडिशा में रहेगा
जो कि अक्टूबर 2024 तक रेडी होने की बात की गई। ठीक, और ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड पहला कोल गैसिफिकेशन प्लांट रहेगा, टालचर फैसिलिटी फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट। आई रिपीट, इंडिया का लार्जेस्ट एंड पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड टालचर फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ है, ओडिशा में है। अक्टूबर 2024 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक्सटेंड कर दिया है एक्सटेंशन टू फ्रेम CAA रूल्स फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा CAA था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, उसको 7 टाइम एक्सटेंड कर दिया गया। इस बार 6 महीने के लिए एक्सटेंशन मिला है इसको। 30 जून 2023 तक इसको एक्सटेंशन मिल गया है। ये आपका, अगर मैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात करूं, ये पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑन 11th of December 2019, ऑल्सो रिसीव द प्रेसिडेंट्स एक्सेंट, फॉलोइंग विच इट वॉज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक, और ये क्या था, जो इलीगल माइग्रेंट्स है ना, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की, हु एंटर्ड इंडिया बिफोर और ऑन 31st of December 2014, जैसे हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की। अभी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 में का शुरू हो गया, कहाँ पर, अहमदाबाद, गुजरात में। और ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गुजरात टूरिज्म ऑन द G20 थीम। जो G20 की थीम है, हम जानते हैं इंडिया के पास चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी है G20 की, तो उसी के थीम के ऊपर, और थीम क्या है उसकी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या फिर वासुदेव कुटुंबकम। इसी थीम के ऊपर आपका ये अहमदाबाद, गुजरात में ये थीम, इसी थीम के ऊपर आपका ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑब्जर्व कराया जा रहा है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य देवव्रत जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। इसके अलावा ये जो आपका इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है, सूरत, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, केवाड़िया, ये सारी जगह पे ऑब्जर्व किया जाएगा। इसी के साथ साथ मोर देन 80 काइट फ्लायर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और वो अपने खुद क्रिएटिव काइट्स को डेवलप करके यहाँ पर उड़ाएंगे, टू शोकेस कि इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है उसको और एक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए टू द होल वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे निकेई एशिया रिपोर्ट की। अभी इंडिया ने सरपास किया जापान को टू बिकम द वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड। पहली पोजीशन पे आ जाता है चाइना, सेकंड पोजीशन पे आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और थर्ड पे आ जाता है हमारा इंडिया इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ व्हीकल्स की सेल्स की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 4.25 मिलियन सेल्स रहेंगी यहाँ पे यूनिट्स की, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। चाइना की बात करें तो 26.27 मिलियंस रहेंगी, और यूएस की बात करें तो कुछ 15 मिलियंस की यहाँ पे व्हीकल सेल्स देखने को मिली। और अब 4th पोजीशन पे कौन हो गया, जापान हो गया। चलिए, इवन अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं मारुति सुजुकी अपने इलेक्ट्रिक मोटर्स को डेवलप करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए इन्होंने अभी एक प्लांट सेटअप किया है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट रहेगा, वो है IMT खरखौदा में। ठीक है, IMT खरखौदा ये कहाँ पर हो गया, ये आपका आ जाता है हरियाणा में, दिल्ली NCR रीजन में आ जाता है ये आपका IMT खरखौदा, जहाँ पर आपका मारुति का वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट्स को डेवलप करने की बात की जा रही है। तो निकेई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार आया कि इंडिया ने सरपास कर लिया जापान को टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन 2022। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेतन शर्मा, इनको रिटेन किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द सीनियर्स मैन सिलेक्शन कमेटी ऑफ BCCI। आई रिपीट, फॉर्मर इंडियन पेसर चेतन शर्मा, इनको रिटेन कर लिया गया है टू द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी ऑफ द BCCI। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये चेयरमैन रहेंगे 5 मेंबर सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी के ऑफ BCCI। ऑलराइट, और इन्हीं की अगर मैं बात करें, द कमेटी रिकमेंडेड चेतन शर्मा फॉर द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी। चेतन शर्मा की बात करें, ये फॉर्मर इंडियन पेसर हैं, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इन 23 टेस्ट एंड 65 वनडे इंटरनेशनल।
ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आधार पूनावाला इन्होंने रिसीव किया पहला डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड। ठीक, ये डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड क्या है? बेसिकली ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो, और ये फर्स्ट एडिशन है, मतलब दिया क्या जाता है, पहली बार दिया गया है। किस लिए दिया गया कि कोविड-19 के टाइम पे जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था टू द सोसाइटी और जो उनके लिए वर्क किया था, उसी के लिए आधार पूनावाला को, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उनको पहले डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द कंट्रीब्यूशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 एट द इनॉग्रेशन ऑफ द भारती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट भारती विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इनकी जो जर्नी थी, इन्होंने जो हेल्प करी है सोसाइटी की, उसके लिए इनको इससे सम्मानित करा गया पहले डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से। किनको? आधार पूनावाला को। और ये कौन है? ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट आ जाता है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने डेवलप किया अनमैन्ड एरियल व्हीकल फॉर ऑपरेशंस इन द हिमालयन फ्रंटियर। आई रिपीट, डीआरडीओ ने अभी एक मल्टीकॉप्टर पेलोड, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल डेवलप किया है जो कि आपके 5 से लेके 25 किलो तक का पेलोड को कैरी करने में मदद करेगा। पेलोड क्या सा हो सकता है? जैसे मान लो अगर कोई ऊपर चोटी पे पहाड़ की कोई हमारा सोल्जर है, उसको उनका खाना खत्म हो गया, तो वहाँ पे पेलोड डिलीवरी के लिए ये आपके ड्रोन्स यूज़ किए जा सकते हैं। रोड से जाएंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन आप ड्रोन्स ईजिली वहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, पेलोड डिलीवरी में बहुत ईजी हो जाएगा। मान लो वहाँ पर ऊपर कोई दवाइयाँ खत्म हो गई, वो ले जाने के लिए कोई सोल्जर इंजर्ड हो गया, तो उसको इमीडिएट अगर कोई मेडिसिन प्रोवाइड करानी है तो नीचे से ऊपर एकदम आप मेडिसिन ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। और यूएवी का सिर्फ ये काम नहीं है ड्रोन्स का। आपको एग्जांपल देता हूँ, रशियन वॉर में, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, तो रशिया ने ईरानियन ड्रोन्स का यूज़ किया है। इन ईरानियन ड्रोन्स ने क्या करा, ये जाते थे यूक्रेन की टेरिटरी में, घुसते थे और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाते थे। मतलब इनको बॉम्ब की तरह, सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज़ किया गया है। वहाँ पर जाएंगे जैसे मिसाइल्स हो गई, और ये क्या है, ड्रोन्स ईजिली कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो कहीं पर भी जाके, जहाँ ये जो इनको कंट्रोल कर रहा होगा, वो जहाँ चाहता होगा वहाँ पे जाके इसको ये ब्लास्ट कर सकता है। तो ये एज अ बॉम्बर भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने डेवलप किया अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप किया फॉर द ऑपरेशंस इन द हिमालयन फ्रंटियर। नेक्स्ट आ जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th एडिशन कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में हो रहा है। ठीक, इसी के लिए अभी एक स्मार्ट टॉर्च थीम और मैस्कॉट भी अनवेल किया गया, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो मैस्कॉट रहेगा उसका नाम है आशा। आशा एक फीमेल चीता है, और मोगली, ये 2 आपके मैस्कॉट्स रहेंगे। टॉर्च है अमरकंटक। ठीक, इट इज नेम्ड आफ्टर द प्लेस वेयर नर्मदा रिवर कंसिडर द स्टेट्स लाइफलाइन originates. This is the first smart torch in any game in the country. The torch is adorned with the carvings of the renowned महाकालेश्वर टेम्पल, रनिंग चीता एंड अ लोटस ऑन टॉप। ठीक, तो ये है अमरकंटक टॉर्च रहेगी, मैस्कॉट आशा और मोगली रहेंगे। कहाँ पर होगा ये 5वां एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? मध्य प्रदेश में होगा। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मांडला, बालघाट, ये सारी जगह पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एडेलेडाइड टाइटल की। एडेलेडाइड टाइटल जो ये आपका टेनिस से रिलेट करता है, तो एडेलाइड टाइटल ये इंटरनेशनल किसने जीता? मेंस कैटेगरी में बात करूं तो नोवाक जोकोविच ने जीता, और वीमेंस टाइटल की अगर मैं बात करूं तो आरियाना सैबलेंका ने जीता। अगर मैं टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच की बात करूं तो ये इनका 92nd कैरियर टाइटल रहेगा, और आरियाना का ये आपका 11th वर्ल्ड टूर एसोसिएशन टूर सिंगल टाइटल रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेनिस की ही। टेलन ग्रिस्कपुर ये आपके वर्ल्ड में नंबर 95 पोजीशन पे आते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली टाटा ओपन महाराष्ट्र 2023 टाइटल को जीत लिया, और ये इनका पहला एटीपी टूर टाइटल रहेगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर ड्वेन पेट्रोशियस। इन्होंने अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। 33 साल के हैं, साउथ अफ्रीकन की बात कर रहे हैं, ड्वेन पेट्रोशियस। ठीक है, और इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया, और ये कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? क्रिकेट। नेक्स्ट, फॉर्मर बंगाल एंड बिहार गवर्नर केसरी नाथ त्रिपाठी जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया।
केशरी नाथ त्रिपाठी जो कि फॉर्मर गवर्नर थे बंगाल के एंड बिहार के, इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं बंगाल के फ्रॉम जुलाई 2014 से लेके जुलाई 2019 तक। ये 3 टाइम उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 इन प्रयागराज, यूपी। ही ऑल्सो हेल्ड एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ बिहार, मेघालय एंड मिजोरम। 1934 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, अगर बात करूँ केशरी नाथ त्रिपाठी जी, ये एक पोएट थे, ऑथर थे और सीनियर एडवोकेट भी थे ये एट इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं पद्मा अवार्डी डॉक्टर तेहमंत ई उडवादिया जी, जिनको फेमसली जाना जाता था फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी। इनका रिसेंटली निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक इंडियन सर्जन है एंड अ गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट। इनको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी इन इंडिया बोला जाता था। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया मुंबई, महाराष्ट्र में एट द एज ऑफ 88। 1934 में इनका जन्म हुआ था एट इन मुंबई, महाराष्ट्र इटसेल्फ। नेक्स्ट बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा भी रिसेंटली एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई है ऑफ प्रोफेसर के अब्दुल गफार। ठीक है, के अब्दुल गफार की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको रिलीज किया गया महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। और याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी ही ब्रांड एम्बेसडर हैं गरुड़ा एरोस्पेस के, जो कि एक ड्रोन बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। रीजन बिंग ये 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया वापस लौटे थे और इसी को मतलब याद रखते हुए, इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 9 जनवरी को। इस बार जो पहला, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस कब ऑब्जर्व किया गया था? 2003 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग प्रवासी भारतीय दिवस स्टार्टेड इन 2019। ऑलराइट, और इसी के साथ साथ याद रखेंगे 2023 में हमने 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को ऑब्जर्व किया। इसकी थीम भी याद रखेंगे, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ये आपकी थीम रहेगी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की। नेक्स्ट आ जाता है यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन लॉन्च किया है ताकि जो यूपी की अर्बन बॉडीज है ना, उनको एट पार लाया जा सके विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। मतलब आप देखते हैं बाहर के देशों में जो सिटीज़ हैं, जो अर्बन सिटीज़ हैं, वो बहुत डेवलप्ड है, वो मतलब बहुत साफ़ रहती हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर हैं, अच्छी लगती हैं, साफ़ सफाई है, हरियाली है हर जगह। ठीक, तो उसी स्टैंडर्ड की डेवलप करने के लिए यूपी को, उत्तर प्रदेश को उसी स्टैंडर्ड तक लाने के लिए इन्होंने अभी एक यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन लॉन्च किया कि जो हमारी अर्बन बॉडीज़ है ना, उनको हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से डेवलप करें, उसको उसी हिसाब से बनाया जाए। इवन अगर आप देखेंगे तो अभी शायद नोएडा या ग्रेटर नोएडा की कुछ सोसाइटीज़ हैं, या फिर वो पता नहीं कौन सी सिटी है, नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा में से एक है, वहाँ पर बोला गया कि जो बिल्डिंग्स है ना, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, वहाँ पर लाइटिंग लगाई जाए। मतलब रात को लाइट्स लगाए जाए कि जब रात को वो बिल्डिंग लाइट चमकेगी तो वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग और सुंदर लगेगा। ठीक, तो ये है आपका यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन। 100 डेज का ये कैंपेन रहेगा। और ये रीज़न क्या है इसको लॉन्च करने का? एक तो हो गया कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाएगा एरिया। दूसरा, अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल, अभी आपका क्या होने वाला है यूपी में फरवरी 2023 में इन्वेस्टर समिट। ठीक है, और उस इन्वेस्टर समिट से क्या होगा, वो चाहते हैं कि यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट करें, और इसीलिए ये पर्टिकुलर ग्लोबल सिटी कैंपेन को लॉन्च किया गया ताकि ये 100 दिन का कैंपेन हो सके और अच्छा सिटी को बनाया जा सके। ठीक है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब होगा? यूपी में होगा। कहाँ पर? लखनऊ, यूपी में होगा। और कब से? 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये वो पहला कोर्ट बन गया महाराष्ट्र का जिन्होंने ई सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग को लॉन्च करा। आई रिपीट, ई सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग। इसके अंडर ऑल कोर्ट रिलेटेड वर्क, फाइलिंग, पेमेंट और अदर कोर्ट सर्विसेज कैन डन थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन और थ्रू द ऑनलाइन मोड। इसको इजीली कराया जा सकता है। तो ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो पहला कोर्ट बन गया महाराष्ट्र का जिसने इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली क्या है, तो वो डिजिटाइज हो गया है।
ठीक, चलिए, तो ये तो हो गए फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया और इनॉग्रेट किए और फाउंडेशन स्टोन इन किए 21 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के इन मणिपुर। एनएचए ने इंट्रोड्यूस किया न्यू सिस्टम टू इवेल्युएट एंड ग्रेड हॉस्पिटल्स। केरला वो इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराने वाला स्टेट बन गया। इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड टाइल्चर फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पर है? उड़ीसा में। अक्टूबर 2024 तक रेडी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंशन दिया टू फ्रेम सीए रूल्स, 6 महीने का एक्सटेंशन मिला फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 बिगेन इन अहमदाबाद गुजरात और G20 की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया। निकेई एशिया रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया सरपास करेगा जापान को टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। ओडीपी कॉर्पोरेशन सेलेक्टेड HCL टेक एज द प्राइमरी IT पार्टनर। ओडीपी कॉर्पोरेशन ये हम देख चुके हैं। चेतन शर्मा ने रिटेन किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी ऑफ BCCI। आधार पूनावाला ने रिसीव किया पहला डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल अवार्ड को। DRDO ने डेवलप किया UAV फॉर द ऑपरेशंस इन द हिमालयन फ्रंटियर। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स बात करेंगे कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में होंगे। नोवाक जोकोविच ने एडलेडा का मेंस टाइटल और आर्याना सेबलंका ने आपका वीमेन टाइटल जीता। टेनिस डच स्टार टेलन ग्रिस्कपूर इन्होंने अपना पहला ATP 2 टाइटल जीता जो कि था टाटा ओपन महाराष्ट्र 2023 को। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर ड्वेन पेरोशियस इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। फॉर्मर बंगाल एंड बिहार गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी इनका निधन हो गया। पद्मा अवार्डी डॉक्टर तेहमंत उड़वादिया जिनको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी सर्जरी ऑफ इंडिया बोला जाता था उनका निधन हो गया। MS धोनी ने भी एक ऑटोग्राफी रिलीज किया प्रोफेसर KK अब्दुल गफार की। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया लौटे थे। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन टू मेक अर्बन बॉडीज ऑन पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये वो पहला कोर्ट बन गया महाराष्ट्र का टू इंट्रोड्यूस ई सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग। तो दोस्तों ये तो थे आपके करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, विच स्टार्टअप बिल्ट आज़ादी सेट सैटेलाइट विच इज मेड बाय 750 स्कूल गर्ल्स। नेक्स्ट, विच स्टेट हाउसेज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम। कितने इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 के लिए बताओ। फोर्थ, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। और फिफ्थ है द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च रिसेंटली कवर्स हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इनिशियली। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया। अगर पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे ऐसे सेशन पे। क्या आप चाहते हैं हम डेली बेसिस पे ये लाते रहें? तो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। सेशन पसंद आ रहा है तब भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और डेली कंटेंट प्रोवाइड करने का हमारा काम रहेगा। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.